Hello everyone, this is Asif Ali and welcome to my channel English with Wiz. But before we start the video, if you are new on my channel, so don't forget to subscribe to my channel and also press the bell icon so that you can get the notification of my all videos. So, my viewers have been waiting for a long time that I should start my channel and I should start properly giving classes. So yes, here you are guys. Today I'm starting the class officially. So what I believe is that if I'll be teaching online, so the first thing I'll be teaching the students, those who will be attending my classes, are tenses. I believe that 12 tenses play a great role in learning or speaking English language. Why? Because it is a natural phenomena. It's quite natural that if whatever you think in your mind and if you want to speak into English, so what you do is first you think whatever the language you speak, you think in that language and you convert it into English. So I think that tenses play a vital role in this because whatever you think in your language, whatever the language you speak, and when you convert it into English, so you should identify that which tense you have thought in your own language and how would you translate it into English. So 12 tenses are very important to learn English language. So we will be starting from 12 tenses. So if we talk about 12 tenses, the first tense is present simple, or some people say present indefinite. So we will be starting from present simple. So present simple. If we talk about present simple tense, so present simple tense talks about three things: permanent action, habits or routine, and facts. Let's talk about these three things in the detail. So if we talk about present simple tense, so it talks about three things: permanent actions, habits or routine, facts or universal truth. So before we go into the detailed explanation, I must understand that most of my students, those who will be learning from my videos, cannot understand English thoroughly, so I have to be bilingual. So मुझे उर्दू इंग्लिश दोनों में चलना पड़ेगा ताकि मेरे जो सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियो से सीखेंगे वो आसानी सीख सकें। इसलिए लिहाजा प्रेजेंट सिंपल को मैं उर्दू में भी साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट तीन चीजों की बात करता है: परमानेंट एक्शन यानी मुस्तकिल किए जाने वाले एक्शंस जो मुस्तकिल हम करते ही हैं, हैबिट्स और रूटीन यानी आप रूटीन के तौर पे आदतन जो काम करते हैं वो, फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसी बात जो सच हो, जो चेंज ना हो सकती हो, तब्दील ना हो सकती है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका यूसेज है कि वी यूज इट फॉर परमानेंट एक्शन, हैबिट्स और रूटीन एंड फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी हम परमानेंट किए जाने वाले एक्शंस के लिए, आदत के लिए, रूटीन के लिए या हकीकत या कायनाती सच के लिए इस्तेमाल करते हैं। उर्दू आइडेंटिफिकेशन इसकी होती हैं: ऐसा सेंटेंस जिसके आखिर में ता हूं, ती हूं, ते हैं आ रहा हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अच्छा, मैंने यहां पर एक लिस्ट दे दी है सब्जेक्ट्स की, एक सब्जेक्ट की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। जो भी प्रेजेंट सिंपल का या किसी भी और टेंस का सेंटेंस इस्तेमाल होता है उसमें सब्जेक्ट यही होते हैं, इनमें से ही कोई एक सब्जेक्ट होता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई नाम, इनको हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। अच्छा, अब हमने कहा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि प्रेजेंट सिंपल परमानेंट एक्शन, फैक्ट्स परमानेंट सिचुएशन का है या परमानेंट एक्शन का है, फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ का है, हैबिट्स और रूटीन, इन तीन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, परमानेंट एक्शन, आई लिव इन लंदन, मैं लंदन में रहता हूँ। ये ऐसा नहीं कि मैं लंदन में आर्जी वक्त के लिए रह रहा हूँ या मैं लंदन गया हुआ हूँ, मैं लंदन में रहता हूँ, ये परमानेंट एक्शन है, तो प्रेजेंट सिंपल में ही जाएगा। इसी तरह यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई ऐसा फैक्ट जो कि तब्दील ना हो सकता हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये ऐसी चीज है कि ये मैं नहीं कह सकता 2 और 2 5 होते हैं। 2 और 2 4 ये कायनाती सच और ट्रुथ है, ये चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह हैबिट्स और रूटीन के तौर पे एक सेंटेंस है, शी प्लेज टेनिस एवरी ट्यूसडे, वो हर ट्यूसडे को टेनिस खेलती है। तो ये एक रूटीन या हैबिट है उसकी। रूटीन इसलिए कि हर ट्यूसडे को खेलती है, इसलिए रूटीन बन चुकी है उसकी, तो रूटीन के तौर पर खेलती है। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने एक चीज देखा कि एंड में या सब्जेक्ट के फौरन बाद यानी वर्ब से पहले
फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स भी इस्तेमाल हो रहा होता है ताकि प्रेजेंट सिंपल की मीनिंग कंप्लीट हो जाए। जैसे यहाँ पे इन्होंने यूज किया है एवरी ट्यूसडे, और यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि आप ट्वाइस अ मंथ भी यूज कर सकते थे, ऑन फ्राइडे भी यूज कर सकते थे, ऑफन, समटाइम्स वगैरह। ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स है, इसकी हम बाकायदा बाद में एक और कोई क्लास लेंगे जिसमें मैं आपको डिटेल में फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स का इस्तेमाल बताऊंगा। अच्छा, फर्दर डिटेल्स हम प्रेजेंट सिंपल की बताते हैं जिससे आपको प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाएगा। देखें, एक बहुत सिंपल सी बात है, हम जो भी सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो मेजोरिटी पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो लर्नर्स खास तौर पे, वो अपनी जो भी उसकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में पहले सोचते हैं, यानी उर्दू में सोचते हैं जुमला, और फिर वर्ड बाय वर्ड उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें मुमकिन है कि शुरू में कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, लेकिन यही फॉर्मूला चल रहा है हर स्टूडेंट के साथ। तो आप जब उर्दू में सेंटेंस सोचेंगे, अगर ऐसा जुमला जिसके उर्दू में एंड में ता हूं, ती हूं, ते हैं आ रहा हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, उसको हम प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा खास तौर पे कि इफ द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और एनी नेम इन अफर्मेटिव सेंटेंस, we have to use or we must use SES or sometime IES with first form of verb, as you can see in example number 2. example number 2 में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जैसे example number 2 में she drinks tea, drink के बाद मैंने S लगाया, तो मैंने यहाँ नोट में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि प्रेजेंट सिंपल के टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, सिर्फ अफर्मेटिव यानी जो सादा जुमला होता है, इकरारिया, जिसमें नहीं भी नहीं आ रहा होता, जिसमें लफ्ज क्या भी नहीं आ रहा होता, सादा जुमला, उसमें हम सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लगाएंगे, जो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हमेशा वर्ब की, उस वर्ब के साथ SES या IES का इजाफा करेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम हो। ये याद रखिएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ SES का इजाफा प्रेजेंट सिंपल में ही होता है, किसी और टेंस के अंदर हम ये SES का इजाफा नहीं करते। और प्रेजेंट सिंपल के अंदर भी हम ये सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में SES या IES का इजाफा करते हैं, जबकि हम नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में नहीं करते। तो आप ये फॉर्मूले समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट सिंपल का अगर कोई अफर्मेटिव यानी सादा जुमला है, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, तो सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट के तौर पे होगा, आई गो टू स्कूल, सिंपल। अगर उसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के फौरन बाद डोंट या डजंट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। अब कहां डोंट आएगा, कहां डजंट आएगा, ये मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है, इस बॉक्स में आप देख सकते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ अगर सवालिया बनाना है तो जुमले के शुरू में डू आएगा, अगर इनकारिया बनाना है तो डोंट आएगा, यानी आई, वी, यू, दे के साथ डोंट या डू आएगा। और ही, शी, इट या एनी नेम, कोई भी नाम हो, तो सवालिया बनाते वक्त जुमले के शुरू में डज आएगा, इनकारिया बनाते वक्त जुमले के सब्जेक्ट के फौरन बाद डज नॉट आएगा, डजंट शॉर्ट फॉर्म इसकी। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। अब देखें, सवालिया करने के लिए हमने जुमले के शुरू में डू या डज, सब्जेक्ट उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इसके एंड में यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। बाय द वे एग्जांपल्स देख लें हमें और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 1 में मैंने लिखा है आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। इसका नेगेटिव मैंने रेड कलर में यहाँ किया है कि आई डोंट टीच इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाता हूँ। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि सब्जेक्ट के बाद सिर्फ डोंट आ जाएगा, बाकी सेंटेंस पूरा वही रहेगा अगर हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हैं। और सवालिया करने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट के स्टार्ट में डू या डज आता है, चूंकि हमारा सब्जेक्ट आई है तो डू आएगा, तो डू आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज और क्वेश्चन मार्क आ गया। अब हमारा सेंटेंस नंबर 2 देखें, यहाँ पे मैंने जानबूझ के शी सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया ताकि आपको वर्ब के साथ SES लगाने का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो शी ड्रिंक्स टी, यहाँ पे असल वर्ब ड्रिंक है, ड्रिंक के बाद हमने S का इजाफा किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट शी आ रहा है। शी ड्रिंक्स टी, नेगेटिव करते हुए वो S का इजाफा आपको नजर नहीं आएगा। शी डजंट ड्रिंक टी, अब यहाँ पे डजंट क्यों आया ये मैं यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर वाजे कर चुका हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम हो तो नेगेटिव करते वक्त डजंट आएगा, सवालिया करते हुए डज जुमले के शुरू में आएगा। अब इसी का हमने क्वेश्चन करना है, तो हमने लिखा कि डज शी ड्रिंक टी, क्या वो चाय पीती है। तो इसमें भी आप देख लें कि S का इजाफा ड्रिंक के बाद नहीं आया, नेगेटिव में भी ड्रिंक के बाद नहीं आया, सिर्फ अफर्मेटिव में आया। तो यानी SES, IES का इजाफा सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव यानी सादा जुमलों में होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में नहीं होता। सेंटेंस नंबर 3 है अली लिव्स इन लंदन, यहाँ पे अली भी एक नाम है, मैंने कहा ही, शी, इट या कोई नाम हो तो वर्ब के बाद S का इजाफा होता है, IES का इजाफा या ES का इजाफा होता है। तो यहाँ पे देखें लिव असल वर्ब है, हमने S का इजाफा करके लिव्स किया कि अली लिव्स इन लंदन, अली लंदन में रहता है। नेगेटिव करते हुए हमने अली के बाद डजंट लगाया, अली डजंट लिव इन लंदन। अब कहाँ डजंट कहाँ डोंट वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप आराम से देख लीजिएगा। सवालिया करते हुए जुमले के शुरू में डज आ गया कि डज अली लिव इन लंदन, क्या अली लंदन में रहता है। तो ये सिंपल एग्जांपल्स और ये एक्सप्लेनेशन के बाद मुझे यकीन है कि आपको प्रेजेंट सिंपल बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन 3 इन सेंटेंस में एक चीज चेक करें, आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपको परमानेंट एक्शन नजर आ रहा है, ये परमानेंट एक्शन है। जैसा कि हमने आपको बताया था स्टार्ट में कि परमानेंट एक्शन हैबिट्स
रूटीन्स और फैक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये परमानेंट एक्शन है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता है, यही उसकी जॉब है, ये उसका परमानेंट एक्शन है। शी ड्रिंक्स टी, ये उसकी हैबिट हो सकती है कि वो चाय पीती है, ठीक है। इसमें कहीं नहीं दिखाया कि वो जो है परमानेंटली ये काम करती है, रेगुलरली करती है, तो ये उसकी हैबिट्स हो सकती है। अली लिव्स इन लंदन, ये फिर एक मर्तबा परमानेंट एक्शन है कि अली लंदन में रहता है। ऐसा नहीं अली लंदन में रह रहा है कुछ दिनों से, या वो लंदन में रहता है, ये उसका परमानेंट एक्शन है। अच्छा, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपने तौर पे कोशिश की है कि बहुत कम वक्त लेते हुए प्रेजेंट सिंपल को एक्सप्लेन करूं, और उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट सिंपल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई चीज मेरी वीडियो में आपको समझ नहीं आई हो, प्रेजेंट सिंपल के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, उसमें आप कॉमेंट कर दें। मैं आपके कॉमेंट को पढ़ के जरूर आपको उस कॉमेंट का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। So friends, hope you like this video, and if you really like this video, so please press the like button and share this video with your friends. And if you have any questions regarding present simple tense, you can write your comments there below in the comment section. Thank you very much.